Hi everyone, Assalamu alaikum and a very warm welcome Friday ke din live on Shafam. It's a very exciting day because last week हमारा 100th session था. It was such a fabulous day. लेकिन मुहर्रम के पहले 10 दिन को रिस्पेक्ट करते हुए, उनका एहतराम करते हुए, we decided to celebrate our 101st session today आप सब लोगों के साथ. So we are waiting on Dr. Sana Ali. हमने सोचा कि आज लाइव थ्रू फेसबुक करते हैं. लेट्स सी हाउ दैट गोज़, क्योंकि विद द करंट रेन सिचुएशन इन कराची बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं. एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं. आई होप आप सब लोग सेफ़ हैं. एंड आई होप एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपने मूड का, अपने खाने पीने का. एंड hopefully as soon as Dr. Sana joins in, we'll be able to start a session. So putting this out there and message us, tell us what's happening. मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ कि आज के सेशन के साथ there is a 100 सेशंस का सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर. सो हमारे इस सेशन को लाइक करें, फॉलो करें, फॉलो द डिटेल्स विच हैव बीन सेंट ऑन, जो आपको इस आइकॉन के नीचे दिखाई जाएंगी. उनको फॉलो करें उन स्टेप्स को. एंड क्या कहते हैं, यू विल बी गिवन ए गिफ्ट हैम्पर. सो hampers are always a nice thing. I love gift. So Friday ka din hai, and I hope Dr. Sana is joining us. I can see somebody from Ahang is joining us, क्योंकि ये वाले sessions जो हैं हमारे in collaboration with Ahang हैं. Shafam and Ahang collaborated ताकि आपके पास और भी ज़्यादा awareness लाई जा सके, आपको बताया जा सके कि आप अपने जिस्म का, आप अपने रवैये का आप किस तरह ख्याल रख सकते हैं. Hello Shafam team, we are live. We are just waiting कि we add the Ahang team and Dr. Sana with us, and then we shall take it from there. So send in messages. हमें हमसे पूछें पर्सनल हाइजीन क्या होती है, पर्सनल हाइजीन सेफ्टी क्या होती है. ऑल दोज वुमेन, जो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, हमसे पूछें. डॉक्टर सना अली से आप प्लीज़ मैसेज करके पूछें कि हाउ कैन मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, जिसको मंथली पीरियड्स कहते हैं, उनके दौरान आप क्या, आपके वो कौन से सवालात हैं जिनको अभी आंसर नहीं कर सके. Thank you so much, Dr. Sana, for joining us. As always, technological issues are at play. Lekin I am so happy and blessed that you have been able to join us live on Facebook. So everybody, this is Dr. Sana Ali from Ahang. Dr. Sana, please अपना थोड़ा सा तारुफ कराइए. Sure. Thank you so much, Rabia, for having me on Shafam today. And since you know that I am Dr. Sana and I'm associated with Ahang, and with my introduction, I would like to give you and all our viewers and listeners a brief background about Ahang also. So, Ahang is a Karachi-based, not-for-profit, non-governmental organization, and it's been around 27 years कि हम जो है वो sexual and reproductive health and rights information and services पर काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जिनसी और सेहत और हुकूक से मुतल्लिक आगाही और मालूमात. जब हम कहते हैं SRHR, तो it's really very important for each and every one of us to understand कि SRHR की डोमेन में क्या फॉल करता है, because it's a very broad area, it's a very huge term. तो हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या फॉल करता है. एंड लेट मी टेल यू कि it's all about health, it's all about knowing your body.
It's all about knowing the changes that is happening in your body with age. It's all about knowing how one can maintain their physical hygiene, especially during menstruation. So ये सारी चीज़ें we emphasize, on all these topics and all these thematic areas from very early age through our community-based programs and through our school-based programs. So Aham basically क्या करता है? Aham partnership build करता है with governmental organizations, non-governmental organizations, whether it be any academic institutions जिसमें आपके वो तमाम schools, colleges, universities आ जाते हैं. इसके अलावा अहम पार्टनरशिप बिल्ड करता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. एंड व्हेन आई से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें प्री सर्विस इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं जिसमें आपके मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आती हैं, और प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं, यानी कि वो सरकारी और गैर सरकारी इदारे जो कि सेहत की फराहमी को मुस्तकिल बनाने के लिए काम कर रहे हैं या अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं. फिर हम पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, विलेज लेवल पर हम काम कर रहे होते हैं लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. सो दिस इज हाउ वी वर्क, एंड व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एम्पावर children, we try to empower adolescents, young boys and girls, newlywed couples, so that वो अपने लिए अपनी हेल्थ से मुतल्लिक जो है वो एक informed decision ले सके. So this is in a nutshell what we as a team at Ahang are trying to do since many years. And thank you for collaborating with Shifam, जो आपका डिजिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, एंड जिसकी होपफुली हमारी और आपकी आवाज़ सुन के इंटीरियर, रूरल बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे सिर्फ एक सेल फोन ही मुहैया है, वहाँ पे आपकी आवाज़ जा सकेगी डॉक्टर सना. सो डाइविंग राइट इनटू द टॉपिक, डॉक्टर सना, जो लोग आपको अभी भी देख रहे हैं और बाद में भी आपको सुनेंगे, हम अगर एक बहुत ही बेसिक लेवल पर पर्सनल हाइजीन, आपकी खुद की जो आपकी सेहत की जो सेफ्टी है उसके बारे में अगर आप ब्रीफली बताएं तो वो क्या है? So Rabia, going straight into that, physical hygiene, personal hygiene की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? I would say it is a set of practices, जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन का, हमारी डेली रूटीन का पार्ट होती हैं, that we do to prevent ourselves and to prevent others, to prevent our surroundings from the spread of disease causing organisms, right? हम infections के spread को रोकने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, दैट इज योर फिजिकल हाइजीन. ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि फिजिकल हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज फिजिकल हाइजीन जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोशल लाइफ पर और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी है. अब वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, if I am the one who's not keeping myself clean, right, no one would like to come and talk to me. No one would like to come and sit next to me, right? So आपकी social acceptability कम हो जाती है, right? आपकी self esteem कम होती है, confidence level down हो जाता है, and this is how आप loneliness का भी शिकार होते हैं, anxiety भी होती है, and it ultimately leads to depression. So this is how physical health आपकी सोशल लाइफ पर और आपकी मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज होती है. बिकॉज इफ यू आर नॉट कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, तो जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, जो लोगों का रवैया है आपकी तरफ, दे वोंट बी रिस्पॉन्डिंग टू यू पॉजिटिवली. बट on the other hand, if you're keeping yourself clean, so of course social acceptability भी बढ़ जाती है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और उसके साथ साथ राबिया एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ केयर कॉस्ट वो भी कम हो जाती है. बिकॉज आप अपनी अननेसेसरी विजिट्स टू योर डॉक्टर और टू योर डेंटिस्ट जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. सो अब फिजिकल हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे मैं कह रही हूँ, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज, व्हाटएवर यू डू टू डॉक्टर सना, कीप. इधर मैं सॉरी 2 सेकंड के लिए मैं अगर सबको ये भी बताती चलूं जो हमें अभी सुन रहे हैं और बाद में भी सुन रहे होंगे, कि डॉक्टर सना ने एक अल्फाज बोला है हाइजीन. हाइजीन का मतलब है सफाई, आपकी जिनसी सफाई, आपके जिस्म की सफाई और साफ सुथरा रहना. अभी
डॉक्टर सना बता रही हैं कि उससे क्या चीजें जो हैं उनका ताल्लुक रहता है। जी डॉक्टर सना। ओके परफेक्ट। सो हम बात कर रहे थे फिजिकल हाइजीन प्रैक्टिसेस की, तो सबसे पहली चीज़ कि उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए, राइट? तो आई वुड से you know before going on to the practices, the role of parents and the role of teachers here is very important, because parents should set an example for their kids from very early age, because वो कहते हैं ना राबिया कि बच्चा आपको सुनता नहीं है जो आप कहते हैं, बट they follow what you do. So parents need to set example, they need to act as a role models for their children, right? And यही role जो है वो हमारी teachers का भी होता है कि hygiene practices को जो है वो they can always check कि जो बच्चा स्कूल आ रहा है उसकी पर्सनल हाइजीन या फिजिकल हाइजीन अप टू द मार्क है या नहीं। अब हाइजीन प्रैक्टिसेस में वो तमाम प्रैक्टिसेस, फिजिकल हाइजीन में वो तमाम प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो कि आप करते हैं टू कीप योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्लीन, राइट? फॉर एग्जांपल योर बॉडी हाइजीन। सबसे पहले हमें पता है कि बॉडी हाइजीन में क्या आता है, रेगुलर शावर्स आते हैं, बट अगेन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये समझना और ये समझाना बच्चों को फ्रॉम वेरी अर्ली एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों रेगुलर शावर्स important हैं? Because our body is coming in contact with millions of outside germs and viruses and bacteria, every hour, every second, every minute. ठीक है, हमारी बॉडी पर ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये जो आउटसाइड जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हैं ये हमारी बॉडी पे लिंगर ऑन करते हैं और स्वेट को ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस में एक बहुत अनप्लेजेंट सी ऑर्डर जिसको हम पसीने की बू कहते हैं वो क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारे अंडर आर्म से, फीट से और उन कपड़ों से जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं उससे आ रही होती। तो उन लोगों में जो कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते उनमें स्किन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस और इफ यू आर नॉट टेकिंग रेगुलर शावर्स, सो लोगों को ऑफकोर्स हेड लाइस का इशू होता है, बॉडी लाइस का इशू होता है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है, ringworm infections होता है। So there are like lot of skin infections जो कि हो रहे होते हैं just because you are not keeping yourself clean, right? Then डॉक्टर साहब, there is also another thing that I was just thinking जब आप बात कर रही थी कि माँ बाप या केयर गिवर्स जो हैं उनको एक अर्ली एज से ही अपने बच्चों में एक सफाई और साफ रहने का, अपने ना सिर्फ अपने इंटरनली अपने आप को साफ रहने का बट एक्सटर्नली जो सफाई होती है वो साफ रखना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बताएं कि हर एज में जब जैसे हमारे जिस्मात बड़े हो रहे हैं हमारी बॉडी के चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हार्मोनली भी बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट हो रही होती हैं जो उस जो हमारे जिस्म की बू है, खुशबू या बदबू, उसके अंदर इजाफा एक आता है। और अगर हम बिकॉज एक मिथ है जो इस वक्त मेरे जहन में आई कि बाज औकात लोगों से ये सुनने को मिलता है हमें पसीना नहीं आता तो हम क्यों नहाएं बार बार। तो इफ यू वुड लाइक टू आंसर दैट। so like I said राबिया कि हमारी हर इंडिविजुअल की बॉडी पर जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 मिलियन से भी ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सो इफ समवन इज सेइंग कि मुझे पसीना नहीं आ रहा, दैट इज समथिंग अगेन जैसे आपने कहा इट्स अ मिथ, ठीक है। एंड जहां तक बात होती है कि हमारी बॉडी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां विद द एज, ऑल दोस चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी विद द एज, बच्चों को ये बताना बहुत यंग एज से, एज early as maybe 5 years or maybe 3 years is really very important, because again जैसे मैंने वो बात की कि बच्चा won't be listening to what you're saying but they'll be following you, what your practice is. For example माँ बाप के लिए ये जरूरी है कि एक प्रैक्टिस बना ली जाए कि whenever you are coming, whenever you are entering home, चाहे वो रात में कितनी भी देर हो गई है, you have to take shower before going to the bed. These are like little modifications जो आप अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं so that बच्चे को पता चले, because एक लड़का एक लड़की कोई भी है वो एज में अपने डिफरेंट मराहिल से गुजर रहा होता है। सो जब एक बच्चा होता है फिर वो प्यूबर्टी जब उसको हिट करती है, देन वो एंटर करता है उस फेज में, तो ऑफ कोर्स पसीने की बू
ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आप में फिजिकल चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक कि फिजिकल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो एब्सोल्युटली. कमिंग एंड या एक बहुत एक हमारे माशरे में एक सेंस ऑफ शेम भी है, जिसके जिसके बायस अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं या उनको समझाना है तो माँ बाप दोनों हिचकिचाते हैं ये बहुत आम और बहुत कॉमन बात करने से कि बच्चे अपने बगल धो, अपने बगल साफ करो, देखो तुमसे बू तो नहीं आ रही, अपने निचले वाले हिस्से को अच्छी तरह धो, साबुन से धो. ये हम बातें, ये जस्ट सेइंग दीज वर्ड्स हमें इतनी शर्म महसूस होती है, इतनी हमारी जबान लड़खड़ाती है कि हम आगे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते. और जब हमारे बच्चे जो 13 12 साल और 16 साल के बीच की उम्रों के होते हैं, वो जब क्लासरूम में बैठे होते हैं या वो कहीं जब बाहर होते हैं और उनके बदन से हल्की एक एक नॉट नाइस को हम कहेंगे, अच्छी खुशबू अनप्लेजेंट. नहीं आ रही, लेकिन एक एक अनप्लेजेंट एक बू सी आ रही है, तो बाकी भी उससे, जैसे कि आपने बताया कि एक जहनी उस इंसान को फिर एक जहनी बहुत अफसुर्दा या एक बहुत एक डिप्रेसिव सी फीलिंग फील होती है, क्योंकि दूसरे उसके इर्द गिर्द आना नहीं चाहते, कोई उसको बताना नहीं चाहता. लेकिन अगर हम माँ बाप या केयर गिवर्स ही अपने शर्म के दायरे में से निकल के बच्चों को ये समझा सकें कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपने जिस्म को जितना साफ रखेंगे उतना ही आप अच्छा फील करेंगे, जैसे आपने कहा. सो Exactly. प्लीज प्लीज गो. Ravi, the only issue is कि हम, as a society, we need to normalize this conversation, right? The shame that is associated with, all these, because honestly, it's still considered as a taboo topic, right? The stigma, the shame that is associated, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है. It's about your health, it's really very normal. It's about your health. इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई shame नहीं associate होना चाहिए. All this happens because of the lack of knowledge. Awareness नहीं है लोगों को. So, what we are trying to do at Ahang is we are trying to raise awareness. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं या हम कम्युनिटी बेस्ड जो इंटरवेंशंस करते हैं, this is what we are trying to do. We are trying to empower children as well as their parents, कि पेरेंट्स या टीचर्स की सेंसिटाइजेशन करके उनको इतना एम्पावर किया जाए कि वो ये नॉलेज आगे जो है वो अपने बच्चों को दे सके, क्योंकि द अल्टीमेट गोल इज टू नॉर्मलाइज द कॉन्वर्जेशन अराउंड ऑल दीज टॉपिक्स, राइट? एब्सोल्युटली. ओके, सो कमिंग ऑन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट शावर्स एंड वी डिस्कस्ड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट in a row is hand hygiene, right? We all know, I understand that we all know that hand hygiene is washing your hands with soap and water, and when the soap and water is not available, आपने alcohol based sanitizer use करना है. And honestly, post COVID, between COVID, सैनिटाइजर्स की इम्पोर्टेंस हम सबके जहन में बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुकी है कि one should carry, now it's a practice that we carry a sanitizer with us all the time, right? In our bags or school bags हो गए, बच्चे कैरी कर रहे होते हैं सैनिटाइजर. बट अगेन ये समझना why इतना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना फोकस कर रही है हैंड हाइजीन पे, तो क्यों कर रही है, उसकी वजह क्या है? कोविड में अगर हम कह रहे थे कि हैंड हाइजीन मेंटेन करें, तो हम क्यों कह रहे थे, इसको समझना बहुत जरूरी है. वो कहते हैं ना राबिया कि जो माउथ है ना आपका, दैट इज अ विंडो टू योर बॉडी. सो वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, यू आर टेकिंग, it's going inside your body. So if you're not washing your hands, before cooking, before eating, if you're not washing your hands after using toilet, जिसको हम toilet hygiene कहते हैं, if you're, if you have pets in your home, ठीक है, you're handling pets. फॉर एग्जाम्पल आप पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो पेट लिटर है या चाहे वो पेट के फूड आइटम्स है, बट इफ यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड्स, सो एवरीथिंग इज गोइंग इनटू योर बॉडी. दैट इज व्हाई हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल तो मॉनसून्स हैं, रेनी सीजन है, ठीक है. सो मानसून्स में होता क्या है कि
जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, these are like really very common. So उसमें टॉयलेट हाइजीन का ख्याल रखना is very 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 important. So that was the importance of hand hygiene. Now coming on to oral hygiene, जिसको हम dental hygiene कह लें, mouth hygiene कह लें, कुछ भी कह लें. Again we all know कि oral hygiene is one needs to brush twice daily. You know, you should floss at least once a day. You should rinse after each and every meal. But again, why we say कि भाई after each and every meal, or if you're eating between the meals, you know, if you're taking any snacks, doctors या dentist कहते हैं rinse your mouth, rinse your mouth. Why it is important? Because हमारे मुंह के अंदर hard to reach surfaces होती है जहां पर हमारा टूथब्रश नहीं पहुंच पाता, ठीक है. वहां पर ऑफ कोर्स हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होता है, उसमें शुगर कंटेंट भी होता है, वो जाकर स्टिक कर जाता है हार्ड टू रीच सरफेसेस पे. तो रिंस करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब तक फूड सॉफ्ट स्टेट में है वो रिंसिंग के थ्रू इट्स गोइंग टू कम आउट. बट अगर आप रिंस करना आपकी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स वो हार्ड हो जाएगा वहां पे, एंड देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर us to remove it manually. Then you have to go visit your dentist and then वो professionally scalings के through जो है वो उसको remove करेंगे. This is why आप इस तरह से आप जो है वो माउथ ऑर्डर को भी, बेड ब्रेथ को भी, हेलिटोसिस जिसको हम कहते हैं उसको भी जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं. दिस इज एक तरीका है बेड ब्रेथ को एलिमिनेट करने का, that you need to rinse between after whatever you are consuming, right? इसमें जो है इसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें वो तमाम हैबिट्स आ जाती है. फॉर एग्जांपल यू नीड टू कवर योर माउथ व्हाइल यू आर कफिंग और स्नीजिंग. तो ये तमाम हैबिट्स भी अब कवर किस तरह से करना है, यू हैव टू यूज अ टिश्यू नहीं है सो अपनी एल्बो को यूज करें. यू आर नॉट सपोज टू डू इट लाइक दिस, राइट? एंड इफ यू आर डूइंग इट लाइक दिस, क्योंकि समटाइम्स स्नीज को होल्ड करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, सो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस यू नीड टू गो एंड वॉश योर हैंड्स. अगर पानी या सोप अवेलेबल नहीं है, यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर अ टाइम बीइंग, एंड देन जब वो अवेलेबल हो जाए देन यूज सोप एंड वाटर. सो दीज आर फ्यू हाइजीन प्रैक्टिसेस जिसको हमें अपनी जिंदगी का, हमें रोजमर्रा की डेली रूटीन का पार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Then comes a phenomena which is very common, very unique to women, which is called menstruation. Menstruation कह लें, पीरियड्स कह लें, मेंसेस कह लें, उर्दू में माहवारी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लें. बट अगेन ये समझना बहुत ज़रूरी है that it's a very natural, normal, healthy process that is happening to girls. ठीक है, I repeat, there is nothing abnormal about it. Nothing abnormal about it. It's a natural, healthy process. In fact, I would like to add that if periods नहीं हो रहे हैं, that is something alarming. That is something unhealthy. But इसका होना is healthy. And again, I would emphasize on the fact that as a society, we need to normalize the conversation around it. क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में, in many parts of the world, it's still considered as a taboo topic. जिसकी वजह से यकीन जाने हम इस टॉपिक को इतने मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन से लिंक करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है? शेमिंग, बुलिंग, ठीक है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? जेंडर बेस्ड वायलेंस. लड़कियों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है. सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे एज अ सोसाइटी हमें काम करने की नीड है, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. since generations girls and women are facing this. और अब तो राबिया, आई वुड से हालत ये है कि इट्स गिविंग राइज टू दी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, अगर हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की, जहाँ पे बहुत हाईली वल्नरेबल लोग रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. लिटरेसी रेट उनका ऑफ कोर्स अर्बन एरिया से कंपैरेटिवली लो है. Societal norms, discriminatory practices, I would say cultural taboos, lack of awareness, accessibility to the healthcare. अगर healthcare की availability है तो या तो वो इतना दूर है कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है,
ठीक है, अगर को करीब है तो अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू. सो ऑल दीज इश्यूज की वजह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं वहाँ पे ये बहुत 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 जो है वो बड़ा, आई वुड से it's a big issue, because awareness का ना होना is the root cause of each and everything, and बिल्कुल since generations girls and women are facing this. बिल्कुल। और डॉक्टर सना, जैसे आपने कहा कि जो आगाही है, ये एक बेसिक बॉडी की नीड है। आपकी जो बॉडी है वो हर महीने, कुछ खवातीन को महीने में 2 दफा हो जाते हैं मेंसेस या पीरियड्स, और जो आपके जिस्म के अंदर जो एक्सेस टॉक्सिक है वो नेचुरल तरीके से एक्सपेल होता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। जो आपका एक एक औरत या लड़की का एक जिस्म का जो निज़ाम बना हुआ है वो नेचुरल निज़ाम ऐसा ही है। एंड जो आपने शेम की बात करी, शर्म की बात करी कि नहीं इस वक्त तुम नापाक हो, इस वक्त तुम ये नहीं कर सकती, इस वक्त तुम नापाक हो तो तुम बाहर नहीं निकल सकती, तुम नापाक हो तो तुम ये महंगा पैड नहीं खरीदो, तुम कपड़ा लगा लो। एंड आपने सना इतनी सारी चीजें आपने जो लिस्ट करी, उनमें आई थिंक सबसे शर्म से भी बढ़ के जो सबसे ज्यादा चीज जो हम देखते हैं रूरल एरियाज में या इवन डेवलप्ड एरियाज में, वो है राइज ऑफ इन्फेक्शंस। क्योंकि खवातीन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिनसी सफाई और अपने जिनसी हुकूक का चूंकि अब पता चल रहा है, तो वो कहती हैं नहीं मैं लूंगी पैसे और मैं खरीदूंगी अपने लिए ये पैड्स, ये सैनिटरी नैपकिन, ताकि मेरा दिन बेहतरी से गुजर चुके, मुझे वो जहनी तशद्दुद ना फील हो, ताकि जिसके अंदर मैं नीचे से भी मेरी खून बह रहा है और ऊपर से भी मुझे तंगी हो रही है, गीलापन है महसूस हो रहा। ये सारी बहुत आम बातें हैं, ये सारे हम अगेन ये वो सारी बातें हैं जो हम हिचकिचाते हैं, शर्म फील करते हैं कहने के लिए कि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से एक औरत आगे जाके माँ बनती है। सो लोगों को ये आगाही देना और समझाना कि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। एंड डॉक्टर सना, 3 साल पहले कोविड से बिल्कुल जब कोविड हिट हुआ था, तो एक एरिया था कराची का, आई एम श्योर कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन कराची के इतने कॉस्मोपॉलिटन शहर में जो मौरीपुर तक का इलाका है, मौरीपुर के आगे सैनिटरी नैपकिन्स नहीं अवेलेबल थे। वो उधर उधर की खवातीन उस वक्त भी 3 साल पहले, 2 साल पहले अभी भी कपड़े और रुई के पैड्स बना के, या जो डिस्कार्डेड कपड़ा होता है जो दर्जी वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह जो फेंक देते हैं, उनको लपेट के वो इस्तेमाल करती थी। नाउ इमेजिन कि अगर वो इतनी इन्फेक्शंस हैं या कोई उसके अंदर कोई जैसे कि आपने बताया कोई डिजीजेस या कोई बैक्टीरिया है, उसके स्प्रेड कितनी आसानी से हो जाता है। प्लीज एग्जैक्टली कंटिन्यू। बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात करी, इन्फेक्शंस, यू नो, मिसमैनेजमेंट ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस, अगर मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँ, कि चाहे वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रही है, चाहे वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल सप्लाईज की वजह से हो रही है, जिसमें हमारे सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स, हजारों तरह के प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, सो चाहे मिसमैनेजमेंट ऑफ हाइजीन प्रैक्टिसेस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती है, चाहे अनअवेलेबिलिटी अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल सप्लाईज की वजह से होती है, अल्टीमेटली सफरर कौन है? विमेन है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? रिजल्ट क्या है? इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, स्किन इरिटेशंस हैं। आई मीन, जिस तरह से आपने बहुत बहुत अच्छे से आपने राबिया बताया कि मिथ्स जो है ना, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं कि तुम नापाक हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू स्टेप आउट, तुम नापाक हो, घर बैठ जाओ, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग इन द कम्युनिटीज राइट नाउ। आप देखें मार्जिनलाइज्ड एरियाज में, वल्नरेबल एरियाज में एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, राइट? उन 7 दिनों में या उन 10 दिनों में एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, गर्ल्स के ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, यही नहीं पता कि ये तो नॉर्मल है। जब तक हम इस चीज को एबनॉर्मल कहते रहेंगे,
तब तक वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो जो मैं कह रही हूँ ना कि सोसाइटी लेवल पे हमें इस चीज़ को रियलाइज करने की ज़रूरत है. एंड इट्स अ मल्टी डिमेंशनल इशू राबिया, जिसके लिए जो है वो मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच या एक कहते हैं ना होलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच की नीड है, जिसमें जो है वो कंबाइंड एंड कोलैबोरेटिव तरीके से काम किया जाए. जैसे आपने एग्जांपल दी कि जो मणिपुर का एरिया है जहाँ पे जो है वो लोगों के पास जब कोविड हिट हुआ था तो सैनिटरी पैड्स या व्हाटएवर सैनिटरी कमोडिटीज मेंस्ट्रुअल कमोडिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो उसमें भी इट्स अ सेक्टोरियल इशू, राइट. ये इदारे हैं जिनकी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिक प्रोडक्ट्स, द नेसेसरी कमोडिटीज जो है वो अवेलेबल हो. जितना ज़्यादा जो है वो एक टूथपेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन भी इम्पॉर्टेंट है. एंड if not more. if एग्जैक्टली, not more, डॉक्टर सना. क्योंकि एग्जैक्ट और यहाँ पे एक और चीज डॉक्टर सना के यहाँ पे मैं अपने मुल्क के जितने मर्द हजरात हैं उनसे अगर रिक्वेस्ट कर सकूं, जो भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं, प्लीज शर्म महसूस मत कीजिए. अगर आपकी माँ, बहन, बेटी आपसे रिक्वेस्ट करे कि हमें पैड की या सैनिटरी नैपकिन की जरूरत है, हम नहीं जाके ले आ सकते इस वक्त, प्लीज हमारी मदद करें, तो खुदा का वास्ता है अपने घर वालियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों की मदद करें. कतराए ना कि आपको एक ब्राउन पेपर बैग में डालना पड़ रहा है एक पैड का पैकेट, क्योंकि वही औरत आपके बच्चों को भी जन्म देती है, आपकी रोटियां भी बनाती है, आप काम भी करती है. तो इस चीज को बहुत 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 हकीकतन और यकीनी तौर पे लेके चलें कि ये एक नेचुरल चीज है, ये कोई शर्मनाक चीज नहीं है, इससे कोई नापाक नहीं हो जाता, इससे कोई कम नहीं हो जाता. तो प्लीज हेल्प आउट कीजिए. ये जो एक शर्म का दायरा है उसमें से निकलिए बाहर, और इसके लिए हम आपके साथ हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक शिफाम आपके साथ हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपके साथ हैं, आहंग जैसे कम्युनिटीज आपके साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं. और ना किस के ये कि एक एक जमाना ऐसा था डॉक्टर सना कि हमारे लोकल सैनिटरी नैपकिन्स नहीं अवेलेबल थे. एक सिर्फ ब्रांड होता था जो जो भी उस वक्त कॉटन के लूप वाले बना के देता था पैड्स. लेकिन इस वक्त जैसे कि आपने कहा, हजारों की तादाद से लोकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं. Exactly. And very well said, Rabia, कि male involvement is really, really, really very important. I would say आधे issues तो ना male involvement की वजह से ही ख़त्म हो जाएंगे, right? And जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे sanitary supplies, menstrual supplies मौजूद हैं market में. So it's really very important for each and every girl and women to understand कि choosing the right product is very important for you, right? मार्केट में बहुत तरह के सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स, रीयूजेबल पैड्स होते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है. और अब तो पीरियड्स अंडर पैंट्स भी आ चुकी हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स आपकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी क्या है. ऑफ कोर्स द पीरियड अंडर पैंट वोंट वर्क इन रूरल एरियाज, राइट. सो मेक श्योर कि यू आर चूजिंग द राइट प्रोडक्ट. एंड सबसे पहली चीज कि whatever you're using, if you're using a sanitary pad जो कि most commonly use होते हैं, so it's really very important to change the sanitary pad timely. Time to time उसको change करना is really very important. Again, if क्योंकि sanitary pad damp हो जाता है, उसमें जो bacteria from the sweat मल्टीप्लाई होते हैं, एंड देन वो फिर स्किन इन्फेक्शंस, इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, वजाइनल इन्फेक्शंस कराते हैं. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमिंग का ख्याल रखें. 4 to 6 आवर्स के अंदर यू नीड टू चेंज योर पैड. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो. अगर कोई लाइट फ्लो है, हैवी फ्लो है, तो उस हिसाब से टाइमिंग्स वुड वेरी. बट एक आइडियल टाइम इज 4 to 6 hours that one needs to change into a new pad. And whenever you are changing into a new pad, you are supposed to wash your private areas. ठीक है. Now washing, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन फॉर वॉशिंग ये है, यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी सोप और एनी परफ्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स डाउन देयर.
क्योंकि परफ्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स या सोप्स के अंदर जिस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, दैट कैन potentially cause infections because वो हर किसी को सूट नहीं करते down there. So World Health Organization जो हमें recommend करता है is using plain lukewarm water. अगर lukewarm water available नहीं है, normal tap water आप use करें, but the only thing that you need to use is just water and nothing else, right? तो डॉक्टर साना, आपका कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे जो यंग माएँ हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बाज़-औक़ात कंप्लेन करते हैं कि साबुन चला गया मेरे प्राइवेट एरिया में, मेरी पीपी में साबुन चला गया, अब मुझे जलन हो रही है, या कोई खातून आती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो पानी भी पीती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, लेकिन मुस्तकिल मुझे यूटीआईज हो रही हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि पीरियड्स के वक्त में 4 से 6 घंटे अपने फ्लो को चेक करते हुए 4 से 6 घंटे बाद अपना पैड चेंज करिए, और अपनी प्राइवेट एरिया की सफाई कामयाबी से हासिल करने के लिए पानी से, रेगुलर पानी से अपने आप को धोइए। Yeah, exactly. And then धोने का भी एक तरीका होता है that you need to, you know, धोने के बाद जब आप wipe off करते हैं उस एरिया को, it's really very important to wipe it off. So आपने front to back wipe off करना है, not from back to आगे front. से पीछे। आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। सो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि पैड चेंज कर लिया, ठीक है, नाउ डिस्पोजिंग ऑफ द पैड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, यू नीड टू रैप इट, पुट इट इन अ पेपर बैग, whatever is available. अगर पेपर बैग अवेलेबल नहीं है, रैप इट एंड देन put it in the dustbin. You are not supposed to flush it down क्योंकि of course it can cause blockages, ठीक है। सो उसको फ्लश नहीं करना, उसको सिर्फ रैप करके डस्टबिन में डाल दें। नाउ अगेन, डस्टबिन यूजुअली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वॉश गाइडलाइंस जो हम देखते हैं उसके हिसाब से क्लोज्ड बिन्स शुड बी अवेलेबल, राइट। बट अगर क्लोज्ड बिन्स नहीं है, सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पेपर बैग में डाल के या रैप करके एंड देन यू कैन पुट इट ऑफ, सो दैट इस तरह से आप, आई वोंट से कि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को खत्म कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हम उसको लिमिट कर सकते हैं। सो दीज आर लिटिल लिटिल प्रैक्टिसेस। और एक और चीज़ राबिया, जैसे आपने एक चीज़ बीच में टच की थी अबाउट कि तुम नापाक हो, यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। इसी तरह का एक और मिथ है विच इज़ रिलेटेड टू बेदिंग, कि you are not supposed to, you know, take showers while you are on period. So again, my question is from a larger audience, is there any scientific reasoning behind it? No, no. Even there are like multiple researches that supports that taking regular showers, you know, during your menstrual cycle is really very important. इतने benefits है राबिया। It helps, you know, soothing your menstrual cramp symptoms, right? आपको आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आपके menstrual cramps जो है, abdominal cramps हैं, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, बैक एक कम हो जाता है, and again you get a chance to clean your private parts. So it's really very important to take regular showers like you do, मतलब आपकी जो routine life में भी जो पार्ट है आपकी हाइजीन प्रैक्टिस का, जस्ट फॉलो दैट, जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हैं, बिकॉज ये भी बातें आती हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू ईट सर्टेन काइंड ऑफ फूड व्हाइल ऑन पीरियड्स, राइट। सो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद अ गुड एंड साउंड स्लीप। और डॉक्टर साना, ये वाली बात, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि नॉट, आई वुड से कि ना सिर्फ रूरल एरियाज में या गांव देहात में या कॉलोनीज में या किसी भी स्ट्रेटा को आप ले लो, पढ़े लिखे लोगों में ले लो, ये जो मिथ है, मेरा पहला दिन है पीरियड का, मैं आज नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे बोला गया है कि अगर मैंने नहाया तो मेरे क्रैम्प्स और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाएंगे, मेरी फ्लो जो है वो पता नहीं क्या होगा, मेरी कमर की हड्डी में दर्द हो जाएगा, मेरे जिस्म फूल जाएगा, मेरा कुछ ना कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ये जो गंदा खून है जिसे आप अपने आपने जो भी आपने प्रोडक्ट यूज करा है, प्लीज कपड़ा या रुई जो स्टेरिलाइज नहीं है उसको मत इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो आप
आपकी चॉइस है, लेकिन सफाई अपने जिस्म की रखना मीन्स कि आप अपने आप को उन इन्फेक्शंस, उन डिजीजेस से बचा रहे हैं जो आपको फिर डॉक्टर, जब आप अपने फैमिली प्रैक्टिशनर या अपने गायनी या जिस जो भी आपका डॉक्टर प्रेफरेंस है, आप उनके पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन आपने 3 या 4 दिन अपने पीरियड्स के नहाया नहीं, इसीलिए आपको इन्फेक्शन हो गई अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में, और फिर उसके बाद आप अपने बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि वो इन्फेक्शन खत्म हो सके। सो अगेन एक बहुत अच्छा रिसेंट एक सेशन में एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सवाल उठा था डॉक्टर सना। डॉक्टर जो थे वो ये कह रहे थे कि देखें, लोग यही समझते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं वो इसीलिए हैं ताकि जो बीमार लोग हैं वो आके तंदुरुस्त हो सके, लेकिन इन अवेयरनेस सेशंस का, जैसे शिफाम आपको लेके आ रहा है, इन लाइव सेशंस का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आप हम अपने पूरे वतन के अंदर आगाही फैलाएं, आगाही बढ़ाएं कि अगर हम अपनी सेहत की, अपने तंदुरुस्त होने की ख्याल रखेंगे, का हम अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, तो हम बहुत सारी डिजीजेस और इन्फेक्शन से बच सकेंगे। Dr. Sana, a question for you also in this, कि एज अ डॉक्टर आप जब इन टॉपिक्स पे, इन मौजूद पे बात कर रही होती हैं या अवेयरनेस दे रही होती हैं या लोगों को बता रही होती हैं कि ये मिथ्स हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं, सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको किस टॉपिक में फेस होती हैं अंडर पर्सनल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स? ऑनेस्टली मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज हम हम जो है ना वो रेडी नहीं है इस इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। दीज आर लाइक रियली वेरी डीप रूटेड मिथ्स है ये, बचपन से ही हमारे दिमागों में डाल दिया गया है कि नहाना तो नहीं है। एंड जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास तभी जाना है जब हमें कोई बीमारी है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज समथिंग कि जो कि प्रिवेंशन पे काम करता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड शिफाम वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटली रीचिंग आउट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड आहंग जो है वो शायद इन पर्सन जाकर वही बात बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं ना वो एक्सेप्टेबिलिटी है। लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि अच्छा मुझे नहाना है, बिकॉज ये डीप बिल्कुल। रूटेड, ये हमारी Absolutely. ओल्ड वाइज टेल्स हैं, दादियों ने नानियों ने बताया हुआ है। बिकॉज शायद उनके ज़माने में लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। तुम्हें कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी है, यू आर नॉट सपोज टू ईट पिकल्स, और इस तरह के जो मिथ्स हैं, इसकी वजह से अगेन मैं यही कहूँगी कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर सना, अगर कोई इदारा या कोई स्कूल अगर आहंग को के साथ अपनी फैसिलिटेशन करना चाहे, या अगर ऑल गर्ल्स स्कूल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अवेयरनेस या जिनसी हकूक और जिनसी हिफाजत और जिस्म की सफाई के बारे में आहंग से राब्ता करना चाहे, तो वो किस तरह करेंगे? बिल्कुल राबिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी कि अहंग ने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अहंग पार्टनरशिप बिल्डिंग के थ्रू काम करता है। ठीक है, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, वॉट एवर इट इज़। अहंग ने पास्ट में अहंग बहुत क्लोजली काम कर रहा है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, टू integrate life skills education in the curricula, because इसी तरह से हम अपने चिल्ड्रंस को, यूथ को, एडolescents को एम्पावर कर सकते हैं। एंड जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरह से कोई स्कूल अप्रोच कर सकता है आहंग को, सो सबसे पहली चीज़, ना सिर्फ स्कूल, आहंग का स्कूल प्रोग्राम तो है, लेकिन आहंग
फैक्ट्रीज में, वोकेशनल सेंटर्स में, हम हर जगह जाकर, इवन अगर हम पार्टनरशिप नहीं कर रहे तो हम वन टच सेंसिटाइजेशन सेशंस उनके लिए कर रहे हैं, हम मदर्स के लिए सेशंस करते हैं, हम केयर गिवर्स के लिए सेशंस करते हैं। एंड आप हमें कहीं पर भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ahang.org पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, ऑफिशियल ऑफिस का एड्रेस मौजूद है, हमारे फेसबुक पेज पे यू कैन ऑलवेज सेंड अ मैसेज एंड कॉन्टैक्ट अस। So through our website, through our Facebook and Insta pages, and through our you can always visit in person to our office. Yeah. अमेजिंग डॉक्टर सना, इससे पहले कि मैं आज का सेशन जो है रैप अप करूं, वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड मैं ये कहती हूं कि अगेन शिफाम के साथ 100 सेशंस करने के बाद दिस इज आवर 101st सेशन, सो थैंक यू डॉक्टर सना फॉर बीइंग आवर 101st गेस्ट स्पीकर। लेकिन आज के दिन पे जो हम बात कर रहे हैं शिफाम के साथ, वो सवालात जो आम तौर पे डिस्कस नहीं किए जाते, वैसा ही एक सवाल है जो आज के सेशन के लिए मैंने रखा था, क्योंकि वो सवाल है जो लड़कियों को नहीं बताया जाता जब उनकी शादियां हो रही होती हैं, उनको नहीं बताया जाता जब वो बालिग या जैसे प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं जब वो जवान हो रही होती हैं। एंड वो चीज है, एंड डॉक्टर सना यू मे और मे नॉट वांट टू टेक दिस क्वेश्चन, सो इट्स अप टू यू, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपके मेंसेस का जो आपके दौरान है, एक बहुत मिथ एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन है कि क्या हम जिनसी ताल्लुकात रख सकते हैं जितनी देर हमारे पीरियड्स या मेंसेस आ रहे हों। सो सेक्सुअल रिलेशंस की, फिजिकल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, मर्द और औरत के बीच में जितनी देर आपके पीरियड्स आ रहे होते हैं। डॉक्टर सना, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? Yes, why not? I would definitely like to take this question. And again, जैसे कि आपने कहा कि usually हम इस चीज़ को avoid करते हैं, and हमें नहीं बताया जाता जब शादी हो रही होती है, which is very important. And honestly, राबिया, शादी हो रही होती है उस वक्त या उससे पहले भी, comprehensive sexuality education is really very important. लोग कहते हैं ना कि adolescents, youth are really very curious about all these topics, and they, और अगर हम नहीं बताएंगे ना, they will go and search. Google भरा पड़ा है इन सारी चीजों से, so in my opinion, to the best of my knowledge, I think कि